ओके जी, वेलकम बैक। अभी तक हमने एजेंट की जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो हमने देखी। फिर एजेंट जिस टास्क इन्वायरमेंट में ऑपरेट करेगा उस टास्क इन्वायरमेंट को डिफ़ाइन किया। उस टास्क इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट पार्ट्स हो सकती हैं, ठीक है, उसको अलग अलग स्टडी किया। डिफरेंट फीचर्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ द इन्वायरमेंट देखी, या स्टेट्स आप कह सकती हैं ऑफ द इन्वायरमेंट, और फिर उनका असर, उनका इन्फ्लुएंस भी देखा, और एंड पे ये कंक्लूड किया कि यस, द डिज़ाइन ऑफ एन एजेंट इज़ ग्रेटली influenced or tuned by the environment it is going to operate in। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे किसी एजेंट को डिज़ाइन करते हैं और एजेंट का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। सो we have studied already that agent is a combination of architecture, that is some sort of hardware, and then a program that is running above that hardware. So the job of artificial intelligence is to design the agent program that implements the agent function, mapping percepts to action. So now the field of artificial intelligence is actually to design that program, and to design that program effectively that can implement the agent function, whose task is to map the percept sequence to an action. So that is complete AI. Now, the aim is to find a way to implement the rational agent function concisely. Now, the aim of this course is particularly to implement the agent function of a rational agent. Okay. Skeleton for agent program: it takes the current percept as an input from the sensors and returns an action to the actuators. So the program takes current input, that's it. Agent program takes current percept as input. So this is the definition of agent program. Okay, agent function takes the entire percept history. So now the domain of the agent function is the complete percept history, while the input to the agent program is just the current situation or current state, you can say, the current percept received. This is the difference. So function is a generic thing, program is an implementation of the abstraction of function. Okay. अच्छा, तो the simplest agent is table driven agent. इसको टेबल ड्रिवन एजेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि जो फंक्शन जिसको हम एजेंट फंक्शन का नाम हमने दिया है, उस फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन एक टेबल की शेप में या फॉर्म में की गई होती है। तो इसलिए इस टाइप को, जहाँ पे ये टेबल मेंटेन होता है एजेंट के अंदर, इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एजेंट फंक्शन, उस पर्टिकुलर एजेंट को कहते हैं टेबल ड्रिवन एजेंट. Designer needs to construct a table that contains appropriate action for every possible percept sequence. तो ये हमने वैक्यूम क्लीनर प्रोग्राम में हमने ये देखा था कि वहाँ एक टेबल कंस्ट्रक्ट हुआ था जिसके लेफ्ट साइड पे परसेप्ट सीक्वेंस और राइट साइड पे actions थी. Table driven agent does do what we want. It implements the desired agent function. वो यही करता है, ठीक है. लेकिन इस अप्रोच के कुछ ड्रॉबैक्स है. ये दिस इज जेनेरिक, दिस इज
this can be constructed for any particular agent, लेकिन इसके drawbacks हैं. Huge table, if there are, I mean, large number of possibilities of percepts and percept sequence, then and similarly large number of actions, then the table will grow, and the time will come that we may not be able to maintain that table anymore. So huge table take a long time to construct a table. So rather than to perform useful action, effective actions, we will be busy. The agent will be busy to construct the table. There is no autonomy. You have just a lookup table. Just go there, see this particular sequence is here. Now the action is this. There's no learning. Even with learning, need a long time to learn the table entries. For example, if you want to memorize and learn the table, so there the table will take a lot of time to be learned. Okay. Now, so because of these drawbacks in a table-driven agent, other types of agent have been introduced, and these categorize all these agents are in 5 broad categories. The first one is simple reflex agent, the other one is model-based reflex agent, the third one is goal-based agents, the fourth one is utility-based agent, and the last one is learning agents. These are arranged in order of generality. Now the first one is simple reflex agent. Okay, इसमें क्या होता है? This is one of the simplest kind of agents. Okay, now the most important property of this agent is कि ये agent इसको जो current percept मिल रहा है, अभी इसको जो percept मिल रहा है, उसके जो latest percept है, उसको देख के एक्शन करता है, बाकी हिस्ट्री कोई कंसिडर नहीं करता. इससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्या होता, नहीं, लेटेस्ट अभी क्या परसेप्ट आया है, एक्शन. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, the vacuum agent whose agent function is given in the previous slides is a simple reflex agent because its decision is based only on the current location and on whether that location contains dirt. ठीक है, करंट लोकेशन, इसने पिछले कहाँ सफाई की थी, कहाँ से ये लेफ्ट होके यहाँ है, कहाँ से ये राइट होके यहाँ है, वो इन्फॉर्मेशन ये नहीं रखता. जस्ट देखता है करंट किस लोकेशन में है और वहाँ डर्ट है कि नहीं है तो साफ कर दो, नहीं तो मूव कर दो. So this type of agent is what is called simple reflex agent, which only focuses on the current state, or you can say current percept. So this is a pseudocode for a table-driven agent, a table-driven reflex agent. Normally, this type of agents are, since these kind of agents are simple agents, that's why they can be constructed, their function can be constructed as a table. So this is a table-driven agent, a table-driven reflex agent. So you can see it receives percept and it returns an action. Now, okay, these are static, these are constant. Percepts, a sequence initially empty. So there is a sequence of percepts initially. There is no percept, so it remains empty. Now a table of actions indexed by percept sequence initially fully specified.
So there must be a table and there must be a percept initially empty, and then it will get a value whenever the agent receive a percept. Okay, so it simply does whenever it receive a percept. So if the percept is a new one, so it is appended to the end of the percepts, just like the one we have seen in the table earlier. Okay, and then on this particular, okay, this is actually appended to the sequence of uh, so the percepts that has been received is stored, I mean that is appended to the sequence of percepts. Okay, and now this percept is matched in the table if founded that action written in front of the questioned percept are received and returned in response of the percept. So this is very simple now. This function receive percept, okay, initially no percept, so when the percept is received is assigned to this particular construct, and we have a table that is fully defined. We receive percept, percept is added to the sequence of percepts, and the percept is searched in the table. So the lookup process will get this percept in table and will get an action from the table against this percept, and this action is received, I mean delivered, returned. So this is the pseudocode of a simple reflex agent. And here you can see the structure or the architecture of a simple reflex agent. How does it work? This is the environment. The agent receives a percept through sensor, and this is basically what the word is like now. This is the current state of the word. Okay, then now the it is the agent's turn to perform action because it has received a percept. So what it does, it get this percept from the sensor and give it to the condition action rule, you can say the table, and from here it get an action, and now through the actuators that action is performed. This is a simple reflex action, sorry, reflex agent. Okay, let's have a look at the other aspects of reflex agent. Suppose that a simple reflex vacuum agent is deprived of its location sensor has only a dead center sensor. तो जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है उसमें एक तो ये कि बैकएंड पे ये वो टेबल ड्रिवन सिंपल रिफ्लेक्स आई मीन टेबल ड्रिवन एजेंट है। दूसरा इसमें मसला ये है कि फॉर एग्जांपल अगर तो इस एजेंट को आपने डिप्लॉय कर दिया है किसी पार्शली ऑब्जर्वेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो फिर ये इसमें मसले आ सकते हैं। वो मसले क्या हो सकते हैं? वो ये हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने वही वैक्यूम एजेंट वाला
वैक्यूम क्लीनर जो एजेंट है वही एग्जांपल दोबारा देख लेते हैं। उसमें फॉर एग्जांपल जो लोकेशन सेंसर है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, या वो हटा दिया गया है। फिर क्या होगा, फिर अब जो परसेप्ट आएगा वो सिर्फ होगा कि डर्ट है कि नहीं है और क्लीन है कि नहीं। तो अगर डर्टी होगा तो ये सक कर देगा, क्लीन कर देगा। अगर क्लीन हुआ फिर ये क्या करेगा, क्लीन, फिर ये दोबारा चेक करेगा कि है कि नहीं है, क्लीन है, क्लीन है, क्लीन है, ठीक है। अच्छा, सेंसर नहीं है तो ये अगर लेफ़्ट वाले स्क्वायर में चला गया तो चूँकि इसके पास तो अ, वो सेंसर नहीं है लोकेशन वाला, ठीक है। तो फिर ये राइट नहीं जा सकता, अगर ये राइट में चला गया तो फिर ये लेफ़्ट मूव नहीं कर सकता। ओके, सो एक इन्फिनिट लूप में ये फंस जाएगा। अगर पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट है, मतलब इन्फिनिट लूप ऐसे होगा कि इसका जो राइट साइड है उसमें डर्ट पड़ी हुई है, क्योंकि इसके पास लोकेशन सेंसर नहीं है तो वो उधर मूव नहीं कर रहा और वो क्लीन नहीं कर रहा। तो हम चेक करेंगे कि आया एजेंट ने सारा काम कंप्लीट कर दिया, नहीं किया होगा, दोबारा उधर बैठा हुआ होगा। फिर घंटे बाद चेक करेंगे, नहीं हुआ, फिर घंटे बाद, ये इन्फिनिट लूप बन जाएगा। काम नहीं हो रहा होगा और इसलिए नहीं हो रहा होगा कि उसके पास वो सेंसर नहीं है या उसके लिए इन्वायरमेंट, सारा का सारा इन्वायरमेंट ऑब्जर्वेबल नहीं है। तो इस तरह के मसले आ सकते हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। और एक और इसका हल हो सकता है कि हम रेंडमाइजेशन डाल दें रिफ्लेक्स एजेंट में, कि कुछ अरसे बाद ये ख़ुद से रेंडमली मूव करना शुरू करेगा या रैंडम एक्शन लेना शुरू कर देगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि वो इन्फिनिट लूप से बाहर आ सकता है अगर वो लेट्स से सेंसर नहीं भी है, ठीक है, वो सेंस कर सके कि राइट साइड पे कोई लोकेशन है कि नहीं, और वो ऐसे ही लेफ़्ट पे जाए और कुछ अर्से बाद ऐसे ही राइट पे जाए। तो फिर इसका जो इन्फिनिट लूप जिसमें वो स्टक हो जाता है और काम नहीं हो पा रहा होता, तो वो उस सिचुएशन को ओवरकम किया जा सकता है, ठीक है। तो हाँ, तो डिटर्मिनिस्टिक जो सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट है उसको आउट परफॉर्म कर सकता है रेंडमाइज्ड सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। अच्छा जी, दूसरा क्योंकि ये बहुत सारे मसले हैं सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में, तो थोड़ा सा उसका एक मॉडिफाइड फॉर्म, ठीक है, उसको कहते हैं मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये क्या करता है, द मॉडल बेस्ड एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली, अच्छा वो पार्शियली ऑब्जर्वेबल में एप्लीकेबल नहीं था या वो काम इफेक्ट भी नहीं कर सकता। इट कैन, द मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट कैन वर्क इन अ पार्शियली ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंट, ठीक है। A model-based agent has two important factors. Model, it is knowledge about how things happen in the world. तो ये previous knowledge, जो previous जो कुछ हुआ है उसको भी स्टोर करता रहता है, तो उसको मॉडल कहते हैं उस नॉलेज को। इंटरनल स्टेट, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द करंट स्टेट बेस्ड ऑन द परसिव्ड हिस्ट्री। तो इस स्टेट को कहते हैं कि जो स्टेट वो रिसीव करता है एनवायरनमेंट से, तो वो स्टेट को जिस तरह उसने रिसीव किया उस तरह नहीं देखता, बल्कि उस स्टेट के अंदर जो प्रीवियस परसेप्ट्स आए हैं उनको इनकॉर्पोरेट करके एक अलग स्टेट बनाता है, उसको कहते हैं इंटरनल स्टेट। तो उस स्टेट को जहन में रख के ये एक्शन लेता है। करंट स्टेट नहीं जो रिसीव, करंट स्टेट प्लस नॉलेज फ्रॉम द हिस्ट्री, ये कंबाइन होके इंटरनल स्टेट बन जाता है और उस इंटरनल स्टेट को देख के ही ये एक्शन लेता है। Now these agents have the model, which is knowledge of the world, and based on the model they perform actions. Updating the agent state requires information about how the world evolves, how the agent's action affects the world. ठीक है, कैसे दुनिया, आई मीन कैसे पहले काम हुए हैं इस तरह के, और अब ये जो काम होगा इसका क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट के ऊपर। तो देखें, ये एनवायरनमेंट है, ठीक है, यहाँ से परसेप्ट आया है,
तो अब करंट स्टेट हमने डिज़ाइन करना है ना, तो करंट स्टेट तो एक ये स्टेट है। रिफ्लेक्स में ये कि इसको देख के एक्शन लिया जाता है, यहाँ इसको नहीं, जो एक्शंस ये प्रीवियसली परफॉर्म करता रहा था उसको कहीं सेव कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, यहाँ से जब अब इनपुट आया, परसेप्ट आया, तो इसने इस परसेप्ट को, इस स्टेट से परसेप्ट आया ना, तो उस परसेप्ट को अब उसने डायरेक्ट एक्शन नहीं लेना, ठीक है, रिफ्लेक्स की तरह, बल्कि इसने उस परसेप्ट को, इसके बाद जो नॉलेज पड़ा हुआ है उस नॉलेज में देखा कि इस तरह के परसेप्ट्स जब आए थे तो क्या एक्शन लिए गए थे, ठीक है। और जब वो एक्शन लिए गए थे तो इस एक्शन का क्या असर हुआ था। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद वो डिसाइड करता क्या है, उसने ये एक्शन अभी लेना है, ठीक है, ये जो इधर से एक्शन लोगों ने लिए हैं, या उस एक्शन का कोई मॉडिफाइड फॉर्म यूज़ करना है, जो भी करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो इन सब के बेस पे एक स्टेट, इंटरनल स्टेट डिज़ाइन कर लेता है, बेस्ड ऑन दी परसेप्ट रिसीव एंड बेस्ड ऑन दी प्रीवियस हिस्ट्री। वो इंटरनल स्टेट डिज़ाइन कर लेता है, उस स्टेट को भेज देता है कंडीशन, एक्शन, रूल या परसेप्ट और एक्शन वाले जो टेबल था, ठीक है। और बेस्ड ऑन दी मॉडिफाइड फॉर्म, जो मॉडिफाइड परसेप्ट था, ठीक है, उस परसेप्ट से एक्शन निकाल के वो एक्शन परफॉर्म करते। सो नाउ बेसिकली इस नॉलेज बेस को, या इसमें ये नॉलेज स्टोर हो रहा होता है, उसको कहते हैं मॉडल, ठीक है। सो दिस दिस डजंट entirely produce response based on the current state, rather it incorporates the knowledge and things from history in order to design the response, ठीक है। तो ये एक डिफरेंस है, ये नॉलेज बेस, ये डिफरेंस है मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट में और सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट में। तो अब इसका सूडो कोड देखते हैं ना। परसेप्ट आया, इसने एक्शन रिटर्न करना है। सबसे पहले करंट स्टेट जो है इन्वायरमेंट का, ठीक है, वो मॉडल जो नॉलेज पड़ा हुआ है, ये नॉलेज अपडेट होता रहता है। रूल्स क्या है, जो टेबल है, ठीक है, जहाँ पे एक लेफ्ट साइड पे परसेप्ट सीक्वेंस है और आगे एक्शन है, और एक्शन, ठीक है, इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये अपडेट होता रहेगा। नाउ हमने क्या किया, हमने करंट स्टेट जो एक्शन एक्चुअल में रिक्वायर्ड है, या जो एक्शन अगर ये रिफ्लेक्स होता तो कौन सा एक्शन कहता है ना, तो वो एक्शन जो कि सजेस्टेड एक्शन है। परसेप्ट आया, परसेप्ट क्या है, और नॉलेज, तो ये सब कुछ लेके ये अपडेट स्टेट क्या करता है, ये इंटरनल स्टेट बना देता है। तो अब वर्ड को नहीं देखा जा रहा, बाकी इस स्टेट को देखा जा रहा है। इस स्टेट के अगेंस्ट, अच्छा, इस स्टेट और जो टेबल पड़ा हुआ इसमें स्टेट के अगेंस्ट एक्शंस हैं, वो टेबल और ये स्टेट, ये रूल मैच को हैंड ओवर कर दिया जाता है। इस स्टेट के अगेंस्ट कौन सा रूल, वो रूल एक्सट्रैक्ट करके यहाँ आ जाता है, ठीक है। या कौन से रूल में, मतलब रूल के टेबल में कौन से रो में ये स्टेट है, तो वो रो आ जाता है, और उस रो, ठीक है, उस रो के अगेंस्ट कौन सा एक्शन है, तो वो एक्शन, तो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। सो नाउ यहाँ पे इंटरनल स्टेट डिज़ाइन होता है। उस इंटरनल स्टेट में क्या होता है, उस इंटरनल स्टेट में न सिर्फ दी परसेप्ट रिसीव, बल्कि मॉडल और एक्शन, ठीक है, और करंट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारे इंकॉर्पोरेट करके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो अब उसमें अगर लेट से किसी रिफ्लेक्स, जो सिंपल रिफ्लेक्स हमने
वहाँ पे अगर सेंसर ख़राब भी हो जाए, ठीक है, तो चूँकि नॉलेज अवेलेबल है तो करंट स्टेट पे तो डिसीजन नहीं लिया जाता, बल्कि नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करके, ठीक है, तो वो स्टक नहीं रहेगा इन्फिनिट लूप में, नहीं, बल्कि कुछ ना कुछ काम या लेफ़्ट राइट मूवमेंट और इस तरह के डिसीजन होते रहें। ओके जी, इसके बाद जो टाइप का एजेंट है उसे कहते हैं गोल बेस्ड एजेंट। नॉलेज हमने रिफ्लेक्स, सिंपल रिफ्लेक्स में नॉलेज इनकॉर्पोरेट कर दिया तो उसको मॉडल बेस्ड का नाम दिया गया, ठीक है। समटाइम्स नॉलेज भी सफिशेंट नहीं होता, उसकी एग्जांपल देखते हैं। अच्छा, तो इन ऑर्डर टू select or perform a desirable action or successful action, or you can say an action that can maximize the success, ठीक है। तो वो आपके नॉलेज पे नहीं, बल्कि सिर्फ मतलब नॉलेज पे नहीं, बल्कि आपको गोल, आप चाहते क्या है, जो गोल है, आपको गोल के बारे में इंफॉर्मेशन हो तब, और प्रीवियस नॉलेज भी हो, तो तब आपके जो एक्शंस हैं वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो जो गोल बेस्ड एजेंट है इसमें न सिर्फ हिस्ट्री बल्कि गोल की इंफॉर्मेशन भी डाली जाती है। तो ऐसा एक्शन जो कि प्रीवियस हिस्ट्री, ठीक है, को यूज़ करके एक एजुकेटेड एक्शन लिया जाए, ठीक है, सिर्फ प्रीवियस नॉलेज को, बल्कि गोल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसको भी यूज़ करके फिर कैलकुलेटेड और एक एजुकेटेड एक्शन लिया जाए। These agents may have to consider a long sequence of possible actions before deciding whether the goal is achieved or not, ठीक है। तो इस तरह काइंड ऑफ फोरकास्टिंग करते हैं कि अगर हमने ये किया उसके बाद ये किया तो प्लानिंग, तो ये एक्शन अगर मैं लूँगा तो फिर आगे एक्शन वो सारे हरकत रहते हैं, गोल तक मैं पहुँच जाऊँगा कि नहीं। सच कंसिडरेशन ऑफ डिफरेंट सिनेरियोज आर कॉल्ड सर्चिंग एंड प्लानिंग। तो वो ये एक्शन लेने से पहले सर्चिंग और प्लानिंग करता है, तब जाके एक्शन लेता है, ठीक है। तो जब गोल अवेलेबल हो तो फिर आप सर्चिंग और प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस वजह से ये गोल बेस्ड एजेंट ज़्यादा प्रोएक्टिव होता है, ठीक है। इन्वायरमेंट से परसेप्ट आया, ठीक है, और नॉलेज पे इंटरनल स्टेट डिज़ाइन करके उसने एक एक्शन डिसाइड किया कि ये एक्शन करना है। अब उस एक्शन को लेके और गोल से इंफॉर्मेशन लेके अगर सर्चिंग और प्लानिंग हो गई कि आया ये जो एक्शन है ये सुटेबल है, गोल तक हमें पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा, तो फिर क्या होगा, ये एक्शन, इस एक्शन को मॉडिफाई किया जाएगा, वो एक्शन नहीं। तो बेस्ड ऑन द गोल इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम अबव, फिर ये मॉडिफाइड एक्शन डिज़ाइन करता है या डिसाइड करता है। सो गोल बेस्ड एजेंट में गोल की इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट की जाती है। ओके, थोड़ा सा एक मॉडिफाइड फॉर्म है गोल बेस्ड एजेंट का, ठीक है। ये उन सिनारियोज में यूज़ होता है, लेट से अब आपको पता है कि गोल तक पहुंचने के लिए एक रास्ता नहीं, एक से ज़्यादा रास्ते। फिर अगर आपके पास गोल की इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन उस गोल तक पहुंचने के लिए कौन सा मेथड या कौन सा अप्रोच जो है वो ज़्यादा यूज़फुल है और कम कॉस्टली है। सो यूटिलिटी बेस्ड एजेंट्स जो हैं, दीज एजेंट्स आर सिमिलर टू द गोल बेस्ड एजेंट but provide an extra component of utility measurement, which makes them different from, which makes them different by providing a measure of success at a given state. Utility-based agents act based on not only goals but also the best way to achieve the goal. तो ये थोड़ी सी इंटेलिजेंस और थोड़ा सा जो है ना यूजफुलनेस ऐड कर देता है कि नहीं, अगर आपने वो गोल को कंसिडर कर रहे तो उस गोल को अचीव करने से ज़्यादा रास्ते, लेट्स से अगर अभी आपने एक रास्ता उठा लिया है, वो क्या पता इतना यूज़फुल ना हो, ठीक है, या कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो, और उसके ज़रिए मतलब उसको यूज़ करके आप करंट एक्शन डिज़ाइन कर रहे हैं तो आपका एक्शन ऑप्टिमाइज नहीं होगा।
ठीक है। तो इसलिए इस पर एक यूटिलिटी मेजरमेंट डाली जाता है। तो एक यूटिलिटी फंक्शन होता है और हर एक जो गोल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो उस यूटिलिटी फंक्शन से पास की जाती है। ठीक है। तो वो फिर मैप करता है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द गोल, क्या ये जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ये जो तरीका है गोल अचीव करने का, इसकी यूटिलिटी कितनी है। तो सबसे बेस्ट पॉसिबल ढूंढ के उसके बाद एक्शन डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है। सो यहाँ पे इन्वायरमेंट इलाकी है डिसाइड हो गया है कि ये करना है। ठीक है। गोल की इंफॉर्मेशन भी इनकॉर्पोरेट हो गई है वो इस यूटिलिटी से। तो गोल की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद जितने भी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द गोल है उन सबको यूटिलिटी फंक्शन से गुजार के फिर उसमें से बेस्ट पॉसिबल अप्रोच को एक्सट्रैक्ट करके उसके ज़रिए एक्शन डिज़ाइन किया जाता है या एक्शन डिसाइड किया जाता है। ठीक है। जो लास्ट टाइप ऑफ एजेंट है दैट इज़ लर्निंग एजेंट्स। ठीक है। तो लर्निंग एजेंट्स कैसे डिफरेंस है बाकी सबसे डिफरेंट है। A learning agent in AI is a type of agent which can learn from its past experiences or it has learning capabilities। तो ये लर्निंग करता है। ठीक है। बाकी सारे उनमें लर्निंग कैपेबिलिटी नहीं थी, लेकिन ये लर्निंग करता है। कैसे करता है तो वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। ओके। तो लर्निंग एजेंट में अच्छा, लर्निंग एजेंट में क्या होता है कि जो बेसिक नॉलेज इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है स्टार्ट में, वो नॉलेज ये यूज़ करता है। और उसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज़ लर्निंग एलिमेंट। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग इम्प्रूवमेंट्स बाय लर्निंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। तो वही जो पहले आपने देखा कि वो नॉलेज बेस्ड जो है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, वो नॉलेज बेस्ड जो है वो अपडेट होगा। वो अपडेट जिस तरह हमने गोल बेस्ड वगैरह में देखा था, तो यहाँ पे वो नॉलेज बेस है ना, वो अपडेट होगा। लेकिन ऐसे रैंडमली अपडेट नहीं होगा कि आपने क्या एक्शन लिया, बल्कि एक साथ में एक और मॉड्यूल होगा, उसको कहते हैं क्रिटिक। लर्निंग एलिमेंट टेक्स फीडबैक फ्रॉम क्रिटिक विच डिस्क्राइब दैट हाउ वेल द एजेंट इज डूइंग विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स। तो कुछ स्टैंडर्ड्स रखे जाते हैं और देखा जाता है कि ये जो आपने लर्निंग की नई चीज़ आपको मिली है, तो ये कितनी यूज़फुल है आपके लिए। ठीक है। तो ये क्रिटिक डिसाइड करता है। लर्निंग एलिमेंट न्यू चीज़ लेट्स से करने से लर्निंग की, इसने ये देखा कि यार ये मूव यूज़फुल है, तो उस ये लर्निंग एलिमेंट करता है। क्रिटिक जो है वो देखता है कि ये जो आपने नई चीज़ लर्न की कितनी यूज़फुल है, ये रखने के काबिल है कि नहीं है। एक होता है परफॉर्मेंस एलिमेंट। अच्छा, परफॉर्मेंस एलिमेंट क्या करता है? परफॉर्मेंस एलिमेंट बेसिकली जो पिछले हमने पूरे पूरे एजेंट्स देखे ना, तो ये पूरा एजेंट ये इस बॉक्स के अंदर होता है। तो लर्निंग एजेंट के अंदर ये चीज़ें एक्स्ट्रा है, और वो पूरे का पूरा जो बाकी सेंसर जो बाकी एजेंट्स हैं वो यहाँ पर जाइए। तो ये पूरे का पूरा या गोल बेस एजेंट होगा या यूटिलिटी बेस एजेंट, तो ये पूरे का पूरा एजेंट है। ठीक है। और साथ में ये क्रिटिक ये नई चीज़ लर्निंग करने के लिए है। ठीक है। तो ये इधर से नॉलेज लेके ये बताता है कि आपने अब यहाँ पे क्या चीज़ चेंज करनी है। सो ये वो लर्निंग एलिमेंट है जो कि फीडबैक लेता है क्रिटिक से। ठीक है। और ये प्रॉब्लम जनरेटर है। प्रॉब्लम जनरेटर ये है कि ये एक्सप्लोरेशन को इनकरेज करता है या नए नए प्रॉब्लम्स हर्डल डालता है, ताकि जो एजेंट है वो क्या करे, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे और नई चीज़ें सीखे। तो ये वो एजेंट को जेनेरिक बनाने के लिए या मोर जेनेरिक बनाने के लिए क्या करता है, एक्सप्लोरेशन वाला
जो एस्पेक्ट है वो ये कवर करता है, लर्निंग ये, और यूज़फुल लर्निंग के लिए यहाँ से फीडबैक, जिसकी वजह से ये नॉलेज बेस अपडेट होता है और फिर ये एक्शन लेते हैं. सो नाउ दिस इज़ the most powerful agent among the all. So इसी के साथ ही ये लेक्चर कंप्लीट हो गया है. तो इस लेक्चर में हमने क्या, इस चैप्टर में हमने ये देखा कि एजेंट क्या होता है, एजेंट की इन्वायरमेंट कैसे होती है, क्या फीचर्स हैं इन्वायरमेंट की, वो किस तरह असरअंदाज होते हैं एजेंट के डिज़ाइन पे. और फिर हमने ये देखा कि एजेंट फंक्शन क्या होता है, एजेंट प्रोग्राम क्या होता है, ठीक है. एजेंट की परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जा सकता है. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स देखे और फिर हम वी आर लैंडेड ऑन द लेटेस्ट लेजेंड दैट इज़ and most useful and effective agent that is learning agent. ठीक है इंशाल्लाह. तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लर्निंग एजेंट को लेके ही आगे सारे का सारा सेटअप जो है वो बिल्ड करेंगे. तो यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं.